Assalamu alaikum. Welcome to Forward Public School e-learning class 10th, subject Pakistan Studies, chapter number 3, Economic Development, and our topic is Economic Development in Pakistan, part 1. And I'm your teacher, Nargis Sardar. Students, open your book at page number 69. Students, our topic is Economic Development in Pakistan, यानी पाकिस्तान में मुआशी तरक्की. Hold your pencils in your hands and underline the difficult words and write their meanings. Economic development, मुआशी तरक्की. Productive, पैदावार. Capabilities, सलाहियतें. Improvement, इजाफा होना या फ़रोग़ देना. स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मेयारे ज़िंदगी. एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार. सेल्फ सफिशेंसी, खुद कफ़ील. इक्वलिटी, यकसानियत. सोसाइटी, मुआशरा. एग्रीकल्चर, ज़राअत. इंडस्ट्री, सनत. ट्रेड, तिजारत. Let's start our topic. Economic development implies expansion of a country's productive capabilities, improvement in the standard of life, employment, self-sufficiency in food, equality in society. Pakistan economy is based on agriculture, industry, trade and education. We will discuss them one by one. मुआशी तरक्की से मुराद ये है कि कौमी पैदावार में इजाफा हो, लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, रोज़गार के मौक़े पैदा हों, यानी बेरोज़गारी का मसला ना हो, खुराक में मुल्क खुद कफ़ील हो और मुआशरे में दौलत की मुनसिफ़ाना तक़सीम हो, यानी मुआशरे में तबक़ाती फ़र्क मौजूद ना हो. स्टूडेंट्स, पाकिस्तान की माशी हालत या पाकिस्तान की मईशत की बुनियाद ज़राअत, सनत, तिजारत और तालीम पर है. अब हम इन शोबों को ज़राअत, सनत, तिजारत और तालीम को एक एक करके डिस्कस करेंगे. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ज़रई तरक्की. Hold the pencils and underline the difficult words and their meanings. Population, आबादी. Raw material, खाम माल. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मजमूई कौमी पैदावार. केमिकल फर्टिलाइजर्स, कीमियाई खाद. Students, Pakistan is an agriculture country in the sense that 65% of its population is directly and indirectly linked with agriculture. Agriculture sector provides raw material to the industrial sector. The share of agriculture in the country's gross domestic product is around 32%. However, our agriculture sector is yet underdeveloped. Government has taken the following steps for improving the agriculture sector. Students, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, यानी पाकिस्तानी मईशत बुनियादी तौर पर एक ज़रई मईशत है, क्योंकि मजमूई आबादी का 65% बिलवास्ता या बिला वास्ता तौर पर ज़राअत से मुंसलिक है. ज़राअत सन्नतों के लिए खाम माल भी मुहैया करती है और मजमूई कौमी पैदावार का 32% हिस्सा ज़रई शोबे से हासिल होता है, लेकिन अहमियत के बावजूद हमारी ज़राअत पसमानदा है. स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स for improving the agriculture sector. Now we are going to discuss them one by one. Number 1. The use of modern agriculture means such as the use of chemical fertilizers, which was 1,000 ton in 1952 to 1953, reached 2.4 million ton in 2002 to 2003. That has increased agriculture produce. यानी
जदीद ज़रई आलात का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कीमियाई खाद का इस्तेमाल, जो 1952 से 1953 के दौरान 1000 टन था, वो 2002 से 2003 तक 24 लाख टन खाद तक पहुंच चुका है, यानी ज़रई पैदावार में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। Number 2, 148 tons of high-quality seeds were distributed among the farmers in 2002 to 2003 to increase agriculture produce. ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए 2002 से 2003 के दौरान हुकूमत की तरफ से 148 टन आला किस्म का अच्छा बीज किसानों में तकसीम किया गया। Number 3, Agriculture Department sprays insecticides on the crops so that they are safe from diseases and the produce is enhanced. Enhanced mean इजाफा। स्टूडेंट्स, इसी तरह महकमा ज़राअत ने फसलों को बीमारियों से महफूज रखने के लिए फसलों पर जरासीम कुश अद्वियात भी इस्तेमाल की, ताकि फसलों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके और ज़रई पैदावार में इजाफा हो। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ इन पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी एंड टंडू जाम आर प्रोवाइडिंग quality education in the field of agriculture and conducting research which resulted in production of many new varieties of seeds. Students, हुकूमत ने ज़रई तालीम के फ़रोग़ के लिए पेशावर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और टंडू जाम में ज़रई यूनिवर्सिटियाँ कायम कीं, जो न सिर्फ ज़राअत के मैदान में मयारी तालीम मुहैया कर रही हैं, बल्कि ज़रई मैदान में तहकीकी काम करके मुख्तलिफ़ किस्म के नए बीज भी मुतारिफ़ करा रही हैं। Besides this, agricultural loan, better irrigation and support to the process of agricultural produce are also adopted. इसके अलावा ज़रई कर्ज़ाजात की फ़राहमी, बेहतरीन आबपाशी, ज़रई पैदावार की फ़रोख्त और इमदादी कीमत की पॉलिसी भी अपनाई गई है। Students, now we are going to discuss our industrial development. Industrial development का मतलब है सनती तरक्की। At the time of its independence, Pakistan's industrial base was very weak. At the time of partition, there were some 921 industries in British India, of which only 34 came under the jurisdiction of Pakistan. Students, as you know, पाकिस्तान इब्तिदा ही से सनती पसमानदगी का शिकार है, यानी पाकिस्तान शुरू ही से सनती मैदान में तरक्की नहीं कर सका और सनती मैदान में पीछे रहा। तक़सीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने मौजूद थे, जिनमें से पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 34 कारखाने आए। स्टूडेंट्स, राइट द मीनिंग ऑफ जुरिसडिक्शन, दायरा इख्तियार। Students, a strong industrial base is essential for a country's agricultural development. Balance of payments is its international trade and reduction in its rate of unemployment. Base, बुनियाद, essential, ज़रूरी। Reduction, कमी, unemployment, बेरोज़गारी। स्टूडेंट्स, एक मुल्क की सनती तरक्की या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस मुल्क की ज़रई तरक्की, बैनुल-अक़वामी तजारत में मुतवाज़न अदायगी और आवाम को रोज़गार के मौक़े मुहैया करने और मुल्क में बेरोज़गारी में कमी के लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। नेशनलाइजेशन, कौमियत या कौमी तहवील में लेना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सियासी माहौल।
Students, the lack of political stability which has characterized the country ever since its dependence has affected the flow of foreign investment in the country and thus its industrial development. The nationalization of many large industrial units in 1972, followed by that of commercial banks in the private sector in 1974, created an unfavorable political environment for private investment, either in the industrial or the banking sector. Students, पाकिस्तान जब से कायम हुआ है सियासी और माशरती हालात पुरसुकून नहीं रहे, मुल्क को इस्तेहकाम नहीं मिल सका, इसलिए सनती तरक्की मुतासिर हुई है और ये एक हकीकत है। सनती तरक्की के लिए हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन कई इक़दाम किए। मसलन 1972 में हुकूमत ने बहुत सी सनतों को और 1974 में तमाम निजी कमर्शियल बैंकों को कौमी तहवील में ले लिया, यानी नेशनलाइज कर दिया, जिसके बायस सनतकारों और बैंकारों की हौसला शकनी हुई। बाद में 80 की दिहाई में कौमी मलकियत में ली गई सनतों को दोबारा निजी मलकियत में दे दिया गया। इस अमल से सनती पैदावार और तरक्की का रुझान हौसला अफजा रहा। स्टूडेंट्स, बाद में जब 80 की दिहाई में कौमी मलकियत में ली गई सनतों को दोबारा निजी मलकियत में दे दिया गया तो इस अमल से सनती पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ। The state, to be sure, has taken steps throughout its history for the promotion of industrial development in the country. For example, in 1952, Pakistan established the Industrial Development Corporation, Industrial Research Centers, and Pakistan Councils of Scientific and Industrial Research. In 1961, the Industrial Development Bank was created. Industrial areas, the Small Industries Corporation, and institutions of technical education were established. Students, हुकूमत ने अपना काम जारी रखते हुए सनती तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात की। मसलन 1952 में सनती तरक्याती कॉरपोरेशन, सनती तरक्याती मराकज़ कायम की, सनती और साइंसी तहक़ीक़ाती कौंसल कायम की। 1961 में सनती तरक्याती बैंक कायम किया गया। इंडस्ट्रियल एरियाज़ और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन और फ़नी तालीमी इदारे कायम किए। मैन्युफैक्चरर तख्लीक करने वाला या बनाने वाला, एक्सपोर्ट्स बरामद करना। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इज़ टुडे एन इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल, वुलन क्लॉथ, वेजिटेबल ऑयल, मैच बॉक्सेस, लेदर गुड्स, रबर, cement, cigarettes and sugar. Pakistan is not only self-sufficient but also exports them. Students, आज पाकिस्तान सूती कपड़े, ऊनी कपड़े, वनस्पति घी, सिगरेट, माचिस, चमड़े, रबड़, सीमेंट, चीनी और कपास की मसनूआत में न सिर्फ खुद कफील है बल्कि अब ये अशिया दूसरे ममालिक को भी बरामद करता है। ट्रेड यानी तिजारत या लेन देन। इंटरनेशनल ट्रेड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। A country's balance of trade is an important indicator of the economic development of a state. The volume of Pakistan's foreign trade has constantly been growing with its industrial growth. Initially, Pakistan exported agriculture products only, but now the share of industrial goods has been constantly increasing. Balance mutawazin. Constantly musalsal. एक्सपोर्ट बरामद। स्टूडेंट्स, बैनुल-अक़वामी तिजारत एक मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, यानी इसमें एक मुल्क की बरामदात और दरामदात दोनों शामिल होती हैं। किसी मुल्क की माशी तरक्की का अंदाज़ा उस मुल्क के मुतवाज़न तिजारत से लगाया जा सकता है।
जैसे जैसे पाकिस्तान सनती एतबार से तरक्की करता गया, इसकी बरामदात की पोजीशन भी बदलती गई। पहले ज़रूरी नौइयत की अशिया बरामद होती थी, लेकिन अब सनती मसनूआत का हिस्सा भी बढ़ गया है। नेक्स्ट स्टेप इज़ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कुदरती वसाइल। Natural resources play an important role in the economy and prosperity of a country. Climate, forests, water, minerals, animals, manpower, mountain, etc. are natural resources. The country has vast reserves, but unfortunately, Pakistan's natural resources have been extremely underutilized. नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल, इम्पोर्टेंट रोल अहम किरदार, इकॉनमी मईशत, प्रॉस्पेरिटी खुशहाली, क्लाइमेट आबो हवा, फॉरेस्ट जंगलात, मिनरल्स मादनियात, मैन पावर अफरादी क़ुव्वत। स्टूडेंट्स, किसी मुल्क की मईशत और खुशहाली में कुदरती वसाइल को बहुत अहमियत हासिल है। कुदरती वसाइल में आबो हवा, जंगलात, पानी, मादनी वसाइल, हैवानात, अफरादी क़ुव्वत और पहाड़ वगैरह शामिल हैं। पाकिस्तान में बेपनाह कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनको सही तौर पर इस्तेमाल में नहीं लाया गया। And the last step is education. There is a certain link between a country's educational development and its economic development. Without investment in education that brings about development in human resources, the objectives of a country's economic progress cannot be realized. In each 5-year plan, the government allocates funds to education. The aim of the new education policy is to prepare the nation for the challenges of the 21st century. Link राब्ता, डेवलपमेंट तरक्की। स्टूडेंट्स, एक मुल्क की तालीमी तरक्की और माशी तरक्की का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। यानी अगर मुल्क तालीमी लिहाज से तरक्की करेगा तो उसकी मईशत भी मजबूत होती जाएगी। इंसानी वसाइल को तरक्की देने और माशी तरक्की के लिए तालीम के शोबे में मुनासिब सरमायाकारी नहायत अहम है। पाकिस्तान में हुकूमत ने हर 5 साला मंसूबे में तालीम पर ख़ास तवज्जो दी है। यानी कौमी तालीमी पॉलिसी का बुनियादी मकसद कौम को 21वीं सदी के चैलेंजों के लिए तैयार करना है। So students, if we summarize our topic, so we can say that the economic development of a country depends upon the agriculture, industry, trade and educational development. Student, this is the end of part 1 of chapter number 1. Hope you have understood this topic. We will discuss our second topic in our next part. Till then, Allah Hafiz, stay home, stay safe. Thank you.